Hello everyone, I am here again with very interesting topic. In this video, we will see the topic which were left. In the last video, we have started the chapter comparing quantities of class 7th. Some topics were left which we will see in this video. Welcome to my channel, this is Amandeep Kaur and today we will see the concept of percentage, how it works and how we deal with the questions in which we are asked to solve the questions of percentage or we are asked to calculate the percentage. So first of all we'll see what is percentage. You have been listening this topic percentage in your daily life, like you see many times, like that my friend got 80% in her final exams, or when you buy products you get various discounts in the form of percentage, like 25% is given on a certain product. So percentage is a very common topic which you see in your day-to-day life. So now we are starting with the conversions. First of all, we will see that if we are given any fraction, then how we can convert into percentage. This is our first part in which we will see how to convert fraction into percentage. Let us see with the help of example. Suppose we are given a fraction like 2 upon 5. This is the fraction which we can see on our screen. We have to convert this fraction into percentage. How can we convert this fraction into percentage? This is very easy. Only you have to do is to multiply this fraction with 100. Okay, whenever you have to convert fraction into percentage, the only thing which you have to do is to multiply the fraction with 100. After solving this, what we'll get? This will go 20 times, means 40%. जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, हमें डायरेक्टली जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और जब आप उसको सॉल्व कर दोगे तो वो जो हमारा आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमें गिवन है 3/6, ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे हमने अभी बताया, आपको सिर्फ इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है. जब आप इसको सॉल्व करोगे, लाइक 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 से 100 डिवाइड होगा 50 टाइम्स, मीन्स ये हो गया 50%. राइट? तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया, जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन with 100. Okay, is it clear? Let's move to our next topic. Our next topic is to see the conversion in which we have to convert decimal into percentage. Suppose we have given any decimal, not fraction. Earlier we have seen to convert fraction into percentage. Now we will see how to convert decimal into percentage. Let us see it with the help of an example. Suppose we are given 3.5. This is the decimal which is given to us, and we have to convert this decimal into percentage. Then how can we solve this equation? तो जब भी हमें डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में लेकर आते हैं. डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लेकर आते हैं ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10. मीन्स पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरोज आ जाते हैं 1 के बाद नीचे. सपोज यहाँ पर देख लेते हैं हम. सपोज हमें यहाँ लिखा होता है 2.25, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते? हम पहले लिख लेते 225/1. राइट? अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है,
तो ये तो रही बात डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 3.5 को परसेंटेज डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 35/10 लिख दिया। अब आप ये देखोगे कि ये जो है एक हमें फ्रैक्शन मिल गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसे भी वैसे ही करेंगे। ये फ्रैक्शन आ गया, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 35 10 350 मीन्स ये आ गया 350%। राइट, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें दिया गया है 0.04, राइट, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले, तो 004 मीन्स 4/1। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 2 0 लगाएंगे। राइट, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, क्योंकि ये तो अब फ्रैक्शन में आ गया, ये पूरे टर्म किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ में, तो ये दोनों 100 कैंसिल हो गए, कितना बचा, 4%। तो डेसिमल को परसेंटेज में जब भी आपको कन्वर्ट करना हो, आप सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में लेके आइए। फ्रैक्शन में लाने के बाद हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में ला सकते हैं। आई होप आपको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना अब आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसा कि हमने अभी स्टडी किया था कि डेसिमल को और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी हमें फ्रैक्शन या डेसिमल गिवन हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। अब हमें परसेंटेज गिवन है और उसको हमें डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में कैसे लेकर आना है ये हमें देखना है। सपोज ये हम आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा। सपोज हमें 15% एक परसेंटेज गिवन है, ठीक है, इसको हमें अब डेसिमल और फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, जब भी ऑपोजिट हो, मींस परसेंटेज को अगर हमें डेसिमल और फ्रैक्शन में लेके आना है तो अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 100 से, अब हम 100 से डिवाइड करेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा जो हमने अभी तक सीखा, ठीक है। तो 15% को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। इस बार हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये होगा 5 3 15, 5 2 10 एंड 0 मीन्स 3/20। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, किस में आ गया, ये फ्रैक्शन में। अगर आपसे क्वेश्चन में वो फ्रैक्शन में पूछा जाए तो फ्रैक्शन में आ गया। इसी को आप डिवाइड करके पॉइंट में ले आओगे तो ये होगा 0.15। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तब ये आ गया पॉइंट में और इसको हम बोलते हैं डेसिमल। तो जब भी हमें परसेंटेज को डेसिमल या फ्रैक्शन में लेकर आना है तब हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा और फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। अब हमने ये कैसे डिवाइड किया था ये भी आप देख लीजिए। हमने 3 रखा था अंदर इसमें डिवाइड में और 20 बाहर, राइट। 0.0 1 20, 10 0 5 100, ये कितना आ गया 0.15। ये हमारा हो गया डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमें गिवन है 50%, तो 50% को हमें डेसिमल और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, परसेंट का साइन अब नहीं लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ में। 50 2 100 मीन्स 1/2, तो ये आ गया फ्रैक्शन में। और जब हम इसको पॉइंट में लेकर आएंगे 0.5 तो ये आ गया डेसिमल में। ये था फ्रैक्शन में और ये आ गया डेसिमल में। तो आई होप now this topic is clear to you. You will not face any problem while solving the questions. So let's move to our next topic. Our next topic is converting ratio into percentage. In such type of situation we are given a ratio and we have to convert it into a percentage. Let us see with the help of example. Suppose we are given a ratio like 3:1
and we have to convert this into percentage. How we will do that? First of all, we have to solve this ratio. आपको ये रेशियो को सॉल्व करना होगा. रेशियोज को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. सबसे पहले इसमें आप देखेंगे दो नंबर गिवन है आपको, एक 3 गिवन है, एक 1 गिवन है. तो इस 3 को मीन्स किसी भी पार्ट, सपोज हमने इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमारे पास एक पिज्जा था, ठीक है, जिसके 4 पार्ट्स हमारे पास थे. हमारे पास दो गर्ल्स हैं, रीटा एंड पिया, राइट. तो रीटा ने सपोज इसके 3 पार्ट्स खाए और पिया ने इसका 1 पार्ट खाया. इसके जो 3 पार्ट्स थे 1, 2 एंड 3 पार्ट्स रीटा ने खाए और जो 1 पार्ट बचा वो पिया ने खाया. तो इसको हमने रेशियो में इस तरह से लिख दिया है 3:1. अगर हमसे ये सपोज इस सिचुएशन दी जाती और पूछा जाता तो इनका रेशियो क्या होगा, तो इनका रेशियो होगा 3:1. मीन्स जो रीटा ने खाया और पिया ने खाया, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1. ठीक है. अब इस रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें. अगर हमसे पूछा जाए अब आप परसेंटेज में बताइए कि रीटा ने कितना परसेंट ऑफ पिज्जा खाया और पिया ने कितना परसेंट ऑफ पिज्जा खाया, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा जो कि है 3 लिखेंगे अपॉन टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल 4 पार्ट्स थे. टोटल निकालने के लिए आप इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को दोनों को प्लस कर दीजिए. तो 3 + 1 आ गया 4. तो जो फर्स्ट वाला आया इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आया 3/4. और जो सेकेंड वाला था इसी तरह से इसको भी कीजिए 1 अपॉन टोटल कितने पार्ट्स थे 4. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि रीटा ने खाया 3/4 ऑफ फ्रैक्शन और जो पिया ने खाया वो 1/4 ऑफ फ्रैक्शन पिज्जा खाया. ठीक है. अब इसको हम रेशियो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सिंपल है, जैसे हमने अभी सीखा था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will convert these fractions 3/4 and 1/4 into percentage by multiplying it with 100, right? तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ रीटा का कितना परसेंटेज हुआ, रीटा का हुआ 3/4 मल्टीप्लाई 100. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. 2, 5, 0, 2, 25 टाइम्स कट जाएगा ये हुआ 75%, राइट. सो नाउ नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ पिया. पिया का कितना परसेंटेज आया 1/4. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ में. 4 2s are 8 and 4 5s are 20 मीन्स 25%. तो आप यहाँ से देखोगे कि जो रीटा ने कितना पिज्जा खाया 75% खाया और पिया ने खाया 25%. इसको टॉपिक को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जो हमने एक अभी एग्जाम्पल देखा वो तो एक सिचुएशन बेस्ड एग्जाम्पल था. मीन्स हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप बताइए रीटा और पिया दोनों का कितना कितना परसेंटेज पिज्जा उन लोगों ने खाया. ठीक है. अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें हमें कोई सिचुएशन नहीं गिवन है, सिर्फ एक रेशियो दे दिया है लाइक 3:5. हमें ये रेशियो दे दिया है और बोला गया है कि इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. जब कोई भी सिचुएशन ना दी गई हो और सिर्फ बोला जाए कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू परसेंटेज, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. इसको सॉल्व करना और भी इजी है. हम 3:5 को लिख सकते हैं 3/5. ठीक है. ये तो हमने आपको रेशियो वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. जो रेशियोज में गिवन होता है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से फ्रैक्शन में. अगर 3:5 दिया है तो हम उसको 3/5 लिख सकते हैं. तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. बस इसको हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 मीन 60%. ठीक है.
तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सिचुएशन दी गई हो, जैसे पूरे वर्ड प्रॉब्लम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया था रीटा और पिया वाला, पिज्जा वाला, जिसमें हमें अलग अलग पूछा गया था कि आप ये बताइए कि रीटा और पिया का कितना कितना परसेंटेज उन लोगों ने खाया पिज्जा, रेशियो में हमें गिवन था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट रेशियो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये बहुत ईजी है। आप डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आई होप ये कन्वर्जन वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे जो कि परसेंटेज पर बेस्ड हैं, ताकि आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव टू सम ऑफ द एग्जांपल्स। आपकी स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल दिखेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए। इसमें गिवन है हमें फाइंड करना है 30% ऑफ 900 कितना होगा। ऐसे परसेंटेज से रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 30% ऑफ 900 निकालना है। तो 30%, सबसे पहले परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30/100। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमें परसेंट का साइन हटाना होता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 900 हमें गिवन है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद 900 लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे एग्जाम्पल गिवन हो जैसे 30% ऑफ 900, तो 30% को हमने 30/100 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 900 लिख दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 टाइम्स गया, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 270, राइट? तो 30% ऑफ 900 कितना होगा? 270 होगा। ठीक है, आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम अब अपना नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। हमें होल क्वांटिटी निकालनी है, मतलब कोई क्वांटिटी हमारे पास है जिसका 5% 600 है, तो वो क्वांटिटी कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, जब भी ऐसे, जैसे हमें यहाँ पर इट गिवन है, जब भी हमें ऐसी अननोन कुछ गिवन हो तो हम उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम उसको x मान लेते हैं। जो हमने क्वांटिटी है वो हमने x मान ली। ठीक है, लेट द होल क्वांटिटी बी x। लिख लीजिए यहाँ पे, लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका क्या मतलब होगा? 5% ऑफ इट मीन्स x इज 600। इतना क्लियर हुआ हमने ऐसे क्यों लिखा? 5% ऑफ x इज 600, ये हमें सॉल्व करना है। मेन हमारी ये इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम वैसे ही करेंगे। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/100। ऑफ की जगह पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। x इज मीन्स इक्वल 600। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो 5/100 है इसको हमें इक्वल के उस साइड लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? x बचेगा। एक बात आप ध्यान रखिए, इक्वल के उधर 600 तो ऑलरेडी था तो हमने वो लिख लिया। अब देखिए, जब भी कोई क्वांटिटी इक्वल की दूसरी साइड जाती है, अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चली जाएगी, और अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ये आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 5 है ये तो है मल्टीप्लाई में था ये 5, तो उधर जाके ये जाएगा डिवाइड में, तो हमने ये 5 लिख दिया डिवाइड में। और यहाँ पर 100 डिवाइड में था, डिनोमिनेटर में था तो इक्वल के उधर जाके ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पर 100 को न्यूमरेटर में लिखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा?
12,000, राइट। मीन्स जो होल क्वांटिटी है वो होगी 12,000। तो जब भी ऐसा कुछ गिवन हो जो हमें अननोन अमाउंट का पूछा जाए तो आप उसको x मानिए और उसके बाद में इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व कीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है ये। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। हम तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल्स गिवन है 30%, परसेंटेज ऑफ मेल गिवन है कितना 40%, राइट। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालना है। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे, परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल बोथ कितना होगा, मीन्स फीमेल और मेल दोनों का कितना परसेंट होगा, इन दोनों को आपको ऐड करना है। 30% प्लस 40% कितना हो गया, 70% हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने ये देखा कि कितना परसेंटेज दोनों का मिलके हुआ, फीमेल और मेल का, तो ये हो गया 70%। ठीक है, ये हमें पता है, वी नो दैट the whole quantity is 100%। ये हमें पता है कि पूरी अगर पॉपुलेशन देखें या ऐसा कोई भी चीज हम देखें तो एज अ होल अगर हमें पूरा देखना होता है तो हम उसको 100% मानते हैं। ठीक है, तो 70% मेल और फीमेल हो गए, 100% हमारा पूरा पॉपुलेशन था जिसमें 70% मेल और फीमेल थे, तो कितना चिल्ड्रन बचे। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए आपको इस 100 में से 70% को माइनस करना होगा। मीन्स टोटल अगर 100% है, 70% मेल फीमेल है, तो चिल्ड्रन निकालने के लिए आप इसको माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको मेन आपको यही देखना है, अगर आपको होल क्वांटिटी, होल पॉपुलेशन, होल कुछ भी अगर देखना है, अगर आप मेजर करते हो तो वो 100% होता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप जो भी हमें निकालने के लिए बोला जाए वो आप निकाल सकते हो। I hope the topics which we have studied today are very clear to you। तो जो परसेंटेज के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इन्हीं टॉपिक से बेस्ड होंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गए तो आप अपने एक्सरसाइजेस में जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप वो सॉल्व कर पाओगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ और मैं आप उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, ये तो हमारा सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस जो बचा है वो हम डिस्कस करेंगे, उसको भी हम डिटेल स्टडी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, and also if you like my videos and you have not subscribed the channel yet, go and subscribe my channel. Thank you so much.